the people are still at home, but there are some people actually working on the field, and that's what the Prime Minister said, that social distancing is quite important. But in spite of this tough time, we have seen that some warriors, the Corona warriors, are actually on field for us so that we can live life happily and safe. We have actually reached at the Mumbai Port Trust because shipping is one of the important economic activity in the country, and that's the reason, in spite of this lockdown, the shipping sector is working. How this sector is working, how the people are actually working here. More details on it, we have actually reached to the Jawaharlal Nehru Port Trust. Now, this is the busiest port in the country right now, and the big port that we have. And still the operations during this lockdown in on here. Right now we have it as the chairman of the JNPT. Sir, first of all, talking about the operations at the JNPT, we have seen here that complete lockdown in the country. In spite of this, there are some warriors like you actually working on the field. There were a few days of confusion, especially because a container port requires the support of a lot of stakeholders, which includes the transporters on road, the rail operators, the container freight stations, the custom agents, and many more such stakeholders. But after that, we have managed to bring them all together, and we did almost about 70% of our regular business. And we have calls for the next 15 or 18 days, which are almost like normal business. Most of the private ports at this point in time have actually announced a force majeure. What's the reason behind it that the JNPT is working like that? Government of India has said that we can declare a force majeure. The force majeure, however, should not mean that the port shuts shop. Basically, it means that it has been declared as an essential service and we must carry on with work. However, the liability for terminal operators, all other stakeholders, will definitely be treated as a force majeure. As far as port activities is concerned, it's quite a labor-intensive sector that we have seen here. You need a lot of manpower for it. And right now, looking at these operations here, it seems that most of the people are not at the workplace here. So how actually you're managing this entire workplace? हमारे को शुरू में ड्राइवर्स और लेबर्स का प्रॉब्लम बहुत आया. बहुत से लोग जो छोड़ के भी चले गए, जो दूसरे स्टेट से आए हुए थे. परंतु उसके बाद हमने न केवल उनकी सेफ्टी की व्यवस्था की, बट उनके यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था भी की. जो ग्राम पंचायत जिनको एक प्रकार का एप्रीहेंशन था कि हमारे यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो हमारे गांव में वापस ना आए, तो उनकी भी पोर्ट पे व्यवस्था की गई है. और साथ ही साथ सबको पूरी तरह से सेफ्टी गियर, सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे यहाँ पे स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे एकत्रित नहीं होने दिया जाता. और काम करते हुए पूरी तरह जो सेफ्टी का इक्विपमेंट है, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, उनकी पूरी तरह से उनको दिया गया है. इसके साथ ही साथ नियर बाय विलेजेस और हमारे टर्मिनल्स में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हाथ में लिया, जिसमें कि डिसइंफेक्टेंट से फवारनी की गई है, सबको सैनिटाइजर दिए गए हैं, सबको उसके बारे में एजुकेशन दिया गया है. से हम बात करें कंट्रीज की, तो कौन से ऐसे जहाज़ों को आप जो है पहली जो है फुर्सत में करें कि आप अनलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान आपने किया? कौन से गाइडलाइंस आपने आते हुए? इसमें क्लियर है कि एसेंशियल गुड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है. तो जो रीफर कंटेनर्स रहते हैं, जो एक ही टेम्परेचर पे चलते हैं, मतलब मोस्टली फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन हैं, ऑयल है, एडिबल ऑयल्स हैं, ये सब जो है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है. जो शिप्स बेसिकली इन्फेक्टेड कंट्रीज से जो आ रही है, जैसे चाइना की बात करें, फिर अदर कंट्रीज की बात करें, तो ऐसे में पोर्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से ध्यान रख रहा है कि वहाँ से आने वाले शिप्स में या फिर किस प्रकार से जो है उनको डिस्प्ले किया जाए या फिर उनको पोर्ट पे लाया जाए? केंद्र शासन ने इसके बारे में एक बहुत क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, एक प्रोटोकॉल है, जिसके हिसाब से 14 दिन जो है वो शिप को एंकरेज में रखा जाता है अगर वो विशिष्ट कंट्री से आई हुई हैं, और वो 14 दिन होने के बाद ही वो शोर को टच करती हैं. और उसके बाद जो है बहुत दिन पहले से ही सरकार ने उसमें से आने वाले क्रू को वो यहाँ लैंड नहीं करेंगे, इस तरह का जो है बैन. और हमारे लोग जब उस पे शिप पे जाते हैं तो वो पूरी तरह से इक्विपमेंट, जो बॉडी सूट्स हैं और बाकी पूरी जो भी एहतियात बरतनी है वो. इसी सवाल पे आने वाला था, चूंकि काम यहाँ पर आपने कहा कि 70 to 80% कैपेसिटी में इस वक्त काम चल रहा है, तो ऐसे में जो लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पर, उस पर किस प्रकार से जो है एक अपने रखा हुआ है कि जो गाइडलाइंस WHO के द्वारा दी गई वो भी यहाँ पर पारित की जाए, और साथ ही साथ काम को भी डिस्टर्बेंस ना हो, काम को भी हिंड्रेंस ना हो? जी, जैसे शुरू में जो है बाहर से आने वाले लोग जब तक अलाउड थे तब उनको यहाँ क्वारंटाइन में रखा गया, और हमने क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों फैसिलिटीज़ तैयार की हैं.
और अब मात्र जब से गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे प्रोहिबिशन ले आए, मतलब बाहर का क्रू जो है अब यहाँ नहीं उतरता है, तो जो लास्ट लोग भी हमारे यहाँ क्वारंटाइन में थे वो 5 दिन पहले से जा चुके हैं। तो अब हमारे पास बाहर के देश का कोई भी आदमी क्वारंटाइन में नहीं है। और उसके अलावा आगे की परिस्थिति के लिए ये हमारे पास अपना हॉस्पिटल है, हमने उस हॉस्पिटल में पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं। एक अलग से कोविड हॉस्पिटल के लिए भी व्यवस्था अलग बिल्डिंग में करने के लिए हमने पूरी तैयारी की है। क्योंकि संकट अभी इस वक्त हम कह रहे हैं कि शासनता बरकरार है, कब तक, हालांकि जिस प्रकार से ये पूरा लॉकडाउन चलेगा, तो ऐसे में भविष्य को लेकर जेएनपीटी ने किस प्रकार से प्रावधान कुछ किए हुए कि ट्रेड भी हिंडर ना हो, साथ ही साथ जो है सावधानी बरती जाए। देखिए, दो लेवल पे ये बात है। एक है कि अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, पर हमने ये तैयारी जरूर रखी है कि एक कंटिंजेंसी अप्रोच तैयार रहे। जैसे हमने कहा कि आज के दिन में अगर हमारे पोर्ट से इवैक्यूएशन आगे बिल्कुल नहीं हो पाती है, क्योंकि फैक्ट्री शुरू ही नहीं हुई। अगर फैक्ट्री शुरू नहीं हुई, वहाँ से ना एक्सपोर्ट आ रहे हैं, और अगर यहाँ वाला जो इंपोर्ट आया है वो लेने को तैयार नहीं है, तो मेरे पोर्ट में इतनी जगह है, और जो हम रिलेटेड जगहों पे हमने कस्टम से उसको नोटिफाई भी करा लिया है कि हम उसको 2 से 3 महीने तक जो है आगे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा था यहाँ पर कि पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है इस वक्त तो फिलहाल 70-80% इस प्रावधान पे चल रही है, लेकिन ऐसे में जेएनपीटी ये भी ध्यान रख रहा है कि अगल बगल का जो एरिया है वो भी सैनिटाइज हो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ गाँव भी है, यहाँ पे सटे हुए गाँव भी है, ऐसे में उन पर किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। 12 ऐसे गाँव हैं जिनको हम PAP विलेजेस भी कहते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल वहाँ से थे, तो सब गाँवों में हमने पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया है। वहाँ पे रेगुलर डिसइंफेक्शन कार्यक्रम जो है हमारे मार्फत किया जा रहा है। ये भी सवाल है कि आखिर किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, सप्लाईज कैसे आएंगे बाहर के देश से, मेडिकल सप्लाईज कैसे आएंगे, फूड ट्रेन कैसे आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे लोग? मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि पिछले 10 या 15 दिन से अभी हम इस स्थिति में हैं कि ऑलमोस्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो रेगुलराइज हो गया है। अभी जो फील्ड पे कुछ प्रॉब्लम मूवमेंट की थी, अब वो लॉकडाउन में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना स्वाभाविक भी था, तो पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन, सबकी मदद से, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल प्रिंसिपल सेट किए, जो ऑर्डर्स निकाले, उसके आधार पर ये मूवमेंट को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरह से प्लान बी, प्लान सी भी तैयार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आती है कि जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट में एब्जॉर्ब करना पड़े कुछ देर के लिए, या हमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन से आगे इवैक्यूएशन की जगह कुछ और गोडाउन्स या वेयर हाउसेस को यूज़ करना पड़े, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंटेनर्स आते हैं, यहाँ पर माल की ढुलाई होती है, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज में इस वक्त जो है जेएनपीटी का तकरीबन 70 से 80% कार्य जेएनपीटी का आज भी यहाँ पर चल रहा है। और जिस प्रकार से बात करें सप्लाईज की, वो किसी प्रकार की ना हो, इस पर भी जो है जेएनपीटी ध्यान दे रहा है। लेकिन ये सब काम करते वक्त जिस प्रकार से प्रावधान है, WHO में मानदंड जो लिखे गए, उनके अनुसार जेएनपीटी इस वक्त कार्यरत है और देश की सेवा के लिए समर्पित है। Shipping activity is quite important for any economy, and that's the reason in the country as well, when we are facing the COVID-19 lockdown in across country, the shipping activity is still working here. Right now, I'm at the Jawaharlal Nehru Port Trust, and we'll find out how exactly the shipping activity is going on. We'll be having the Director General of the shipping, Amitabh Kumar sir, who's actually monitoring this operation, that everything goes quite smoothly. So my first question to you is that when we are in the period of lockdown here, when everything is still, the shipping activity is still on here, how are you managing to do it, sir? We had realized that it is not going to be business as usual, and we will have to come up with regulations to deal with COVID-19 if shipping activities have to perform smoothly. So we came up with regulations for personal hygiene and safety of the seafarers, hygienic condition inside the ship. Then when ship interacts with the port,
then both sides are apprehensive. Ships don't want to get infected from the port side, Exactly. and the ports don't want to get infected from the ship side. So methods of interaction between the ship staff and the port staff, we had to come up with an SOP for that. And it starts with, when the ships enter the port, they enter the navigation channel, then the ships require the assistance of the port's pilot. So pilot actually pilots the ship inside the port. एसओपी की बात कर रहे हैं, क्या वो एसओपी हालांकि इस वक्त ही प्रावधान किए गए कि कोविड-19 का प्रॉब्लम, या फिर इससे पहले भी इस प्रकार के जो है ऑपरेशंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स? General SOP for operations. General precautions are taken in ship, not only for COVID, but any other contingency is taken care of. COVID required some additional requirements and some additional precautions. There is nothing that cannot be achieved by maintaining proper precautions. So we made sure that whatever is to be touched by a pilot when he is boarding a vessel, he actually boards a vessel when the vessel is moving. So वो moving vessel पे ladder पे चढ़ते हैं, so ladder needs to be cleaned. When the pilot approaches the ship, he needs to be in PPE. Because if he is carrying the virus, then it should not spread to others. We wanted to limit him to the areas where he need to necessarily go. Need to maintain ship it's huge, but still space for navigation is limited. So how to maintain social distance in operational environment? What kind of additional items ships will need? What will happen to the supplies, because ship needs supply. Ship needs to discharge the garbage when it's coming to the port. So the most important aspect वो जो है seafarers, हालांकि बात करें seafarers की, जो लोग इस वक्त शिप पर काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो ऐसे में डीजी शिपिंग ने क्या प्रावधान किए क्योंकि उनकी सेफ्टी भी उतनी इम्पोर्टेंट रहे, उनको भी जो है ज़्यादा दिक्कत का सामना ना हो? नहीं, सबसे पहले तो हमारा ख्याल सीफेयरर्स पे ही जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ मेजर seafaring nation. We are the world's third largest seafaring nation. And in last year, we had around 240,000 seafarers who worked on ships, and most of them were on foreign flag vessels. 2,10,000 foreign flag vessels में थे और 30,000 Indian flag vessels. So, fortunately, ship itself is a very safe zone so far as COVID-19 is concerned. But we have to also make sure that it remains safe at all times, because if the virus reaches the ship, then the entire shipping activity will come to a standstill. And you may be knowing that 90% of our EXIM trade is carried through ships. And it was important for us to keep the seafarers safe. Ship will remain sanitized only when the seafarers are safe. Absolutely. So we came up with a guideline for personal hygiene, personal safety for seafarers, and the kind of material they will need on board ship to maintain that hygiene. They are also responsible for cleaning the entire ship area. So what kind of cleaning would be needed in COVID-19 situation? The seafarers' health profile is also being maintained daily. And before the ship reaches any port, their health profile is sent to the port online to make sure that there is no infection coming from the ship to the port. जो मास्टर्स होंगे शिप पर, वही जो है हेल्थ प्रोफाइल जो लोग शिप पर होंगे उनकी एक प्रोफाइल भेजेंगे. वो एक चार्ट दिया गया है, उस चार्ट के हिसाब से वो लोग अपना प्रोफाइल, हेल्थ प्रोफाइल मेंटेन करते हैं. और वो जब जो पोर्ट के हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको शिप के आने के 3 दिन पहले वो प्रोफाइल
भेज देते जो लोग उस शिप में कार्यरत है उन सभी की हेल्थ प्रोफाइल। उन सब की हेल्थ प्रोफाइल। तो इस तरह से सीफेरर्स का हेल्थ मॉनिटर हो रहा है और मेंटेन हो रहा है। उनके पास टेली डॉक्टर्स का भी फैसिलिटी है। सो इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम दे हैव अ मेडिकल चेस्ट। सो इन केस देयर इज अ प्रॉब्लम दे गेट इन टच विद देयर मेडिकल डॉक्टर्स and take prescription medicines if it is required. By and large, the ships have maintained themselves very well, and they are, as of now, the safest place for a seafarer to be. We have so far, as on today, लगभग 400 जहाज हमारे different ports पे हैं. All ships are safe, secure, and are functioning, and are ready to be operated on the port. सर, इसमें एक सब में एक महत्वपूर्ण बात आती है जिस प्रकार से शिप चूंकि यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में जो वर्क फोर्स इस वक्त है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में डिले भी हो जाता है। हालांकि शिपिंग मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है चूंकि जो फीस है वो डिले है वो वेव ऑफ किया जाए। हालांकि इस पर किस प्रकार से कार्यरत आप कर रहे हैं, पोर्ट या फिर शिपिंग लाइन से आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं चूंकि ये जो डिले है उस पर किसी प्रकार चार्ज ना लगे, उसमें लॉस ना हो। बेसिकली शिप और पोर्ट दोनों जो हमारा एग्जिम ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करते हैं। जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कार्गो आ रहा है पोर्ट्स पे, यही मेन ट्रेड है दोनों, जहाज का भी और पोर्ट का भी। बिल्कुल। पोर्ट एज सच आपने देखा, पोर्ट में सारी कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशंस में कोई डिले नहीं है। एक आध दिन का डिले, शिप का वेटिंग टाइम कभी बढ़ जाता है, बट वो इसलिए नहीं हो रहा है कि पोर्ट के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम पोर्ट से सामान बाहर निकलने में या बाहर का सामान पोर्ट आने में हो रही है, क्योंकि ट्रक्स का ऑपरेशन फुल पोटेंशियल पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेड से डिस्कशन किया था कि अगर उनका सामान पोर्ट में ही रहना पड़े कुछ ज़्यादा दिन, जितना प्रिस्क्राइब दिन है उससे ज़्यादा, तो जो चार्जेस उनको लगते हैं, जैसे रेंट है या ड्यूमरेज है या लेट फीस है, तो हम लोगों ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें कि जो कंटेनर में डिले होता है इसमें तो कंटेनर डिटेंशन चार्ज पे करना पड़ता है, तो वो कंटेनर डिटेंशन चार्ज हम लोगों ने माफ कर दिया है। सुरक्षा के कई सारे प्रावधान इस वक्त कर रहे हैं और जिस प्रकार से कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन बात करें ट्रेड फैसिलिटेशन की, चूंकि इस वक्त जो है काफी हमने देखा कि ट्रेड थोड़ा सा स्लो जरूर हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में डीजी शिपिंग किस प्रकार से इंश्योर करेगा कि अभी जो स्लो डाउन हो उसको बाद में जो है रिकवर, क्योंकि अब तक साशंकता बनी हुई है कोविड-19 के ऊपर, कब ये लॉकडाउन खत्म होगा? नहीं, डीजी शिपिंग अपनी तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अपनी तरफ से शिपिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ में कोई ढिलाई ना आए, ये हम लोगों ने इंश्योर किया हुआ है। फ्यूचर में भी इस तरह से चलता रहेगा। एक बार जब बाहर की ढील थोड़ी कम होगी तो ट्रक्स ज़्यादा चलने शुरू होंगे। जब ट्रक्स ज़्यादा चलने शुरू होंगे तो इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स अपना माल यहाँ से ले जा पाएंगे। जब तक वो नहीं ले जा पा रहे हैं, हम लोगों ने अपनी तरफ से ही सो मोटो उनसे कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेने का फैसला किया है। तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, ताकि उनका जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो बना रहे। किस प्रकार से सामान देश में आएगा, जिस जरूरत के सामान है बाहर से हम सप्लाई करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उस पर किस प्रकार का असर है, और आने वाले समय में जो है किस प्रकार से स्टॉक्स जो भी है वो भी, और साथ ही साथ जो शिप्स आ रही है उन पर भी जो है डीजी शिपिंग के जरिए या फिर मिनिस्ट्री के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कर सकें। शिप्स के लिए तो दो इश्यूज थे। एक इशू कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड, कुछ इश्यूज कोविड-19 से रिलेटेड है। हम लोग ज़्यादा अभी कंसर्न कोविड-19 के सिचुएशन से हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, वो सिचुएशन शिप्स को अभी कुछ दिन तक डील करना है। तो कोविड-19 प्रिपरेशन जो हमारा है, जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, दैट विल कंटिन्यू टू बी फॉलोड। Ships are moving from one port to another, so whenever they interact with the port, they have to maintain that
the distancing that we have prescribed, the PPEs that is required for the ship staff and the port staff, that will continue to be followed. And the trade will go on. The trade will not stop. We have so far not reached a situation where a ship is not unloading or loading cargo. The cargo supply has reduced for them, but they are in a position to load any kind of cargo. We have enough ships available. All ships are in sanitized working condition. So even if the cargo increases by 30%, 40%, 50%, we have enough ships ready to take care of that. For seafarers, of course, my message is to remain on the ship to the extent possible. We understand that fatigue sets in after some time and they need to be relieved. But we don't want them to fall in a situation where, after signing off, they are in a more dangerous situation than the shipboard that they are in right now. So we have asked them to continue to the extent possible unless there is a medical emergency. These are extraordinary situations and we expect them to do extraordinary work. And I'm glad that our seafarers are doing it. Message to everyone is that we want you to be safe and we will ensure that all your supplies that you need at home will reach you, whether essentials or everyday requirement. The DG Shipping, Amitabh Kumar sir, said here that right now, currently, the trades are still running, the ports are working, and there's no dearth of supply as far as container and shipment are concerned. The business will go as smooth as it's going to continue. कौन सा कंटेनर लेने का है? इस वक्त मैं 60 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। यहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर है जो कि इस क्रेन के जरिए शिप में जो कंटेनर्स आते हैं उनको उठाते हैं और जमीन पर रखते हैं। ये ऑपरेशंस चलता रहता है। यहाँ पे कई सारे जो है दिन में अगर देखा जाए शिपमेंट्स आते हैं। ऐसे में किस प्रकार से इस वक्त कार्य चल रहा है? हमारे साथ इस वक्त क्रेन ऑपरेटर है रविंद्र जी। रविंद्र जी, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं? आपका काम बेसिकली क्या होता है? बेसिकली अभी यहाँ पे सामने वेसल लगता है। वेसल लगने के बाद में हम बूम डाउन करते हैं। बूम डाउन करने के बाद में हमारा शिफ्ट इंचार्ज करते हैं कि कौन सा बे का कौन सा कंटेनर निकालना है। तो नीचे हमारे 2 चेकर्स होते हैं, वो हमको बोल देते हैं कि ये बे का ये कंटेनर निकालने का है। तो हम लोग ये जॉयस्टिक है, दोनों बाजू में एक लॉन्ग ट्रॉल का है, ये जॉयस्टिक का होस्टिंग लोडिंग का है और ट्रॉली अप डाउन का है। तो उधर जाने के बाद में जो कंटेनर निकलने का है तो वहाँ पे जाके हमारे एक स्पेडर की ये चीज है, इस स्पेडर से हम कंटेनर उठाते हैं और वेसल से कंटेनर ला के ट्रक के ऊपर रख देते हैं। इस वक्त हालांकि देख पा रहे हैं कि कोविड-19 का खतरा पूरे देश में भी है। ऐसे में आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? हम अभी इधर मशीन के आने के पहले जो रेलिंग है जहाँ से सीढ़ी चढ़ा उसके ऊपर हमारा जो ऑफिसर्स है उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको बोला है कि पूरा सैनिटाइज करना। वो उधर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद में कैबिन में आते हैं, कैबिन में भी सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद में हमारे को ग्लोव्स यूनिफॉर्म्स वगैरह दिया है और हमको भी सैनिटाइज दिया है। हम लोग भी सैनिटाइज करते हैं और ग्लोव्स गया तो फिर बाद में ये जॉयस्टिक को थोड़ा सैनिटाइज करके उसके बाद में फिर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। दिन में कितने कंटेनर्स आप जो है यहाँ से क्रेन के जरिए उठा रहे हैं? अभी एक क्रेन कम से कम 200 कंटेनर 8 घंटे निकालते हैं। अब इस वक्त अगर देखा जाए सरकार ने कहा है कि 50% लोगों को कम किया जाए, जो लोग जरूरत है उन्हें काम पर आ जाए। तो ऐसे में आप लिमिटेड रिसोर्सेज में किस प्रकार से काम कर रहे हैं? अभी समझो यहाँ पे 4 क्रेन लगाने का है वेसल को, तो यहाँ पे 2 या 3 क्रेन लगेंगे, जैसे मैन पावर उतना है। बिल्कुल। तो उसके बाद में जैसे वेसल का कंटेनर निकलेगा उतना निकलते हैं हम लोग, क्योंकि कम से कम 100 निकलता है, कभी 150 निकलता है। लेकिन टारगेट होता है तो नया वेसल लगेगा
तो 200 के ऊपर 200 तक निकलते हैं, उसके ऊपर भी जाता है कंटेनर। शिप में आते हैं, क्योंकि शिप ये जो कंटेनर बाहर से आते हैं, हाँ। तो ऐसे में घर वाले थोड़े चिंतित हैं आप किस हाँ, तरह से? चिंतित होते हैं। वो बोलते हैं कि पहले तो तुम काम पे मत जाओ, तुम घर पे रहो, सनराइज बिजनेस कुछ ये नहीं, जाते हैं आते हैं, हमको डर लगता है, बिल्कुल। ऐसे होता है। तो लेकिन उनको बोला है कि नहीं, हमारे ऑफिस ने सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है, बस को सैनिटाइज करते, शिफ्ट बस आता है हमारा, 6-7 शिफ्ट बस है, तो वो आता है, उसमें भी सैनिटाइज करते हैं, धुआं मारते हैं बस के बाद अंदर, और उसके बाद में हम लोग बस में आते हैं और जाते भी है। तो ये है कोरोना वायरस जिनकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि हम और आप घर पर सुरक्षित रहे, इसलिए ये लोग जो है काम पर आते हैं, हमें किसी भी प्रकार की सप्लाईज की कमी ना हो, इसीलिए जितनी भी हम बात कर रहे हैं, फिर पोर्ट्स में जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त कार्यरत है, हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड मैन पावर, हालांकि उनको इस वक्त जो है सरकार ने कहा है कि कुछ लोग यहाँ पर काम करें, उसके बावजूद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, चूंकि हम और आपको सिविल सप्लाई अपने घर तक मुहैया हो सके। इस वक्त हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो शिप्स मौजूद है। हालांकि इन शिप्स को जो है जो एंकर की जाती है समुद्र में, दूर समुद्र में, और इनको जो है वहां से फिर पोर्ट पर लाने का काम कुछ लोग करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं ये जो इस बोट पे काम करते हैं, और ये लोग जो है इन शिप्स को पोर्ट तक लाते हैं। आपका नाम क्या है? गौतम तुंगा। आप काम क्या करते हैं? मैं बोट का इंजन ड्राइवर हूँ। जब आप बोट को यहाँ पर लाते हैं, बोट पर जाते हैं, तो सुरक्षा का उपकरण आपके पास होते हैं? जैसे कि मास्क की हम बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, आपके पास होते हैं? हाँ, हम अपना मास्क भी है, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर से हाथ को हम लोग सैनिटाइज करते रहता हूँ। और ये टाइम पे। आपका नाम क्या है? यशवंत कोहली। आप क्या काम करते हैं? हम लश्कर का काम करते हैं, जीपी। जब आप काम पर होते हैं तब जैसे सरकार ने कहा है कि सैनिटाइजर मास्क जो है उसका उपयोग किया जाए, क्या आप करते हैं वो? हाँ, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हैं हम लोग। काम करते हैं तो हाथ ग्लोव्स हो गया, फिर हम बात करें मास्क की, सैनिटाइजर, इसका उपयोग करते हैं आप? सब करता है, सब सेफ्टी से पूरा काम करता है, पूरा सेफ्टी से काम। तो जैसे कि हमने देखा कि ये कुछ लोग हैं जो कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, लेकिन ऐसे में ये सभी सुरक्षा उपकरण भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही साथ जो काम वो अविरत चलता रहता है। तो हमने जैसे कि देखा कि किस प्रकार से ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं डटे हुए हैं अपने काम पर, और खास तौर पर जिस प्रकार से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पोर्ट पर जो सामान आता है उसको किस प्रकार से जो है अलग अलग जगह पर पहुंचाने की कोशिश ये कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। हालांकि ये लोग इस वक्त फील्ड पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप घर पे बने रहिए, क्योंकि आपकी सहूलियत का सामान जो है या फिर जो चीज़ें हैं वो इन्हीं लोगों के जरिए जो आपके पास पहुंचने वाली है। तो ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स को हम एक बार फिर से सलाम करते हैं।